आज का हमारा जो सेशन है वो हम सीरीज ऑफ इवेंट्स को फॉलो कर रहे हैं करियर डेवलपमेंट इन काउंसलिंग पे. Since it's next to impossible to concatenate numerous strings of operations into a single mode of operation, so we have chosen a single topic or say a single domain for this 1 hour session with our Muhammad Yesha. Today's session is about, I think it would be better if you, Muhammad Yesha, explain these things. And I would like you to please introduce yourself to everyone. And we will skip the part where everyone is introducing themselves, himself or herself to everyone. So let's move ahead. Yeah, Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining the session. Thank you. ठीक है. Okay, I will try to maintain both like sometime English and sometime like I will Sure. bilingual. Okay. Because some of the terminology we can't able to translate it in this. Sure. Yeah, myself Muhammad Esa. Currently I am working as a senior data scientist at Accenture. I have completed my graduation in 2019 with computer science background, a specialization in like data science, and after that I joined B Technology. I worked there around 3 years. During that period, I also completed my master degree in data science. In 2021, I completed my master degree. After that, I joined, I quit my job from the B Technology. Then I got opportunity to work with one of the big MNC, like top 5 MNC, Cognizant. In Cognizant, I also got opportunity to work with new technology like machine learning, natural language processing, and then I worked there around 2 years. And then again, I switched my job. Then I joined Accenture in 2023. Around 2023, I joined Accenture. Since around last 2 years, I'm working with Accenture. And in Accenture, I got opportunity to work with like emerging technology like generative AI. Now everyone talking about the ChatGPT, Gemini. So like how the world is changing. Now I'm it like interesting things to learn about how the AI massively in affecting the every work. Not only just it like displace the job, but it create the multiple jobs. Like if you think it this way, so it's like my like having me here. I feel like grateful for the all the organization, like all the coordinator who are like involving in this webinar. Like this is a like one of the best way to interact with our Nepali guys to understand each other, and we can able to help a student that how we can choose our career, like what we will choose after 10th, what we will do after 12th, and what are the emerging technology now in our like emerging world. We are going to which emerging technology is we going to create a more job. Like it's not about just we study, it's also about our future. Like not it's just not like yeah sorry for like I mean English में एक क्या होता है कि करियर में हम लोग को सिर्फ एक मनी बेनिफिट भी देखना चाहिए, क्योंकि फैमिली को संभालने के लिए हम लोग को मनी चाहिए. तो उसके लिए हम लोग को क्या है ऐसा फील्ड चूजे जो कि हम लोग को पैशन भी होना चाहिए और मॉनेटरी बेनिफिट भी होना चाहिए. सो ऐसा वेबिनार बहुत हेल्पफुल करेगा, जो कि गांव में जो बच्चे सब आते हैं उन लोग को उतना मालूम नहीं रहता है कि करियर के बारे में. बहुत सारा जैसे कि इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारा फील्ड रहता है. सो आज हम लोग देखेंगे कि आफ्टर 10 के बाद आफ्टर 12 के बाद क्या हम लोग चूज कर सकते हैं, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक डाटा साइंस, जेनेटिव एआई, मशीन लर्निंग, उसका कैसे हम लोग यूज करके अपना बेटर फ्यूचर बना सकते हैं. इट इज नॉट एज अ competitor, it's as a co-pilot for us. Yeah, will you see the screen? Yeah, it's visible. Future proof your career. तो आज का एजेंडा है कि लेकिन ये जो इमेज देख रहा है, जो आप लोग अभी देख रहे हैं स्क्रीन में, द इमेज वी सी ऑन द स्क्रीन, इट इज जनरेटेड बाय द एआई. तो like we are using that AI everywhere. Like it's not like that we are not using, we are using, but we
I don't know about the insight how you can make it more effective way to utilize those things. Let me say like today's agenda. First, we're gonna talk about the AI revolution. Now, AI affect a lot. Like it not only like it changed the world of work. Like everyone talking about the AI. Everywhere if you go, they will talk about the AI. Due to now in every field they are using the AI. That's why it is demanding. Now, in after 10 years, what will happen, we don't know. But I will surely say that upcoming 5 years, the world is ruled by the AI. Now, second is we talking about the the students who are like just clear after like just they clear their milestone 10th standard and plus 12 student and what they want to learn, how they can choose their one career, how they will understand about which path I need to go. We need to decode that. How we can use of AI to know about yourself. Now we'll talk about the traditional path. In traditional path like that, at we previously like हम लोग क्या करते थे +2 के बाद दो ही चीज तीन चीज होता है एक साइंस कॉमर्स और आर्ट्स तो वो ट्रेडिशनल फ्लो हम लोग करते थे तो उस ट्रेडिशनल फ्लो में एआई ने क्या पावर सुपर पावर दिया उसको जो कि हम लोग उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं और नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग इज कैरियर इन एआई जॉब्स अपॉर्चुनिटी इन एआई तो उसके बाद हम लोग कुछ लाइव डेमो देखेंगे about the AI, how to improve our day-to-day life and study using the AI. Now then we'll talk about the what AI can do, and then we have some interactive games, and we'll at last we'll have the like question and answer sessions. Like what our लाइक हम लोग का जनरेशन जो ओल्ड जनरेशन लाइक माय पेरेंट का जनरेशन और ग्रैंड पेरेंट का जनरेशन वो सब क्या करते थे दे हैव द सिंपल रूल वन जॉब कोई भी करना है मास्टर करना था थ्रू आउट द लाइफ वही जॉब करना है हेलो अगर कोई हाँ सलमान एग्रीकल्चर है तो थ्रू आउट द लाइफ एक ही जॉब करना है हेलो जो बैंक में काम करता है थ्रू आउट द लाइफ वो एक ही जॉब लाइक देयर इज पाथ लाइक अ ट्रैक जो ट्रेन की पाथ जैसे है ट्रैक सीधा वैसे ही उन लोग का लाइफ था बट नाउ द रूल इज चेंज वी नीड टू अडेप्ट हम लोग को क्या है अडेप्ट करना है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ क्योंकि अगर हम लोग अडेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग क्या होगा रिप्लेस हो जाएंगे यू नो दैट लाइक there is a myth behind the AI will overrule all the job, but it can't be happened. क्योंकि अगर AI in according to the World Economic Forum in 2025 AI will generating 97 million jobs, new roles. But this job is not related to repetitive job. जैसे हम लोग कोई repetitive job करते हैं वो नहीं. It is like the more thinking capability, more problem solving, more critical job it will create. All the repetitive job it should be replaced so that men can give their more effort to the creative work. If you see here in graph it shows that repetitive work should be decline. मतलब फ्यूचर में क्या होगा जो भी टास्क अगर हम लोग रिपीटिव टास्क हो रहा है जो मैनुअल प्रोसेस हो रहा है उसको एआई रिप्लेस करेंगे लेकिन जिस काम में आदमी का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यूज होता है क्रिटिकल थिंकिंग होता है वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे जिस काम में इमोशन होता है उस काम को नहीं चेंज कर सकते एआई तो देयर इज लिमिटेशन नाउ मूव टू द नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हम लोग को पहले खुद पे ध्यान देगा वेयर यू स्टार्ट लाइक बिफोर अंडरस्टैंडिंग before getting guidance from other first we know yourself like you know you are then only we can able to connect other before so that first we understand about yourself जैसे कि एक prompt मैं लिखा if I am interested in like I love playing cricket I am good at maths I enjoy problem solving. Suggest 5 potential career path for me. Explain how
हाउ माई इंटरेक्ट कनेक्ट विथ ईच अदर। अगर हम लोग अपना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल होता है, लेट मी सॉरी let me show you the one example। जैसे क्या होता है कि हम लोग खुद का डॉट कनेक्ट कर नहीं सकते, देखिए मेरा स्किल क्या है और मेरा करियर कैसे चूज करूं, वो हम लोग डॉट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग को उतना सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट आजकल हम लोग का कौन बनेगा? एआई। Can you open ChatGPT? ओके, यहाँ पे क्या है कि मैं एक प्रॉम्प्ट लिखा हूँ। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड आई एंजॉय solving problem. Suggest 5 potential career path for me. Explain how interests connect to each other. Okay, now it will give me the related my. Okay, let me again open. There is some network issue. Okay, let's. What is giving me a sport analyst? Can I become the sport data analyst, actuary? Then I become the one of the like data scientist, then operational research analyst, and this. So to connect, these are the dot. Like where I am interested in that, and my skill is like mathematics, statistics, and I love cricket. Then I may become the cricket analyst, and maybe become the data scientist. And then we go through all these points. We can do more research, and then we can able to understand ourselves better. लाइक प्रीवियसली वी डोंट हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी। पहले हम लोग के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था। कुछ पूछने के लिए हम लोग को क्या था, हेजिटेशन होता था, टीचर से क्या पूछूं कि क्या करियर करना, क्या बताना, तो बहुत। लेकिन अभी हम लोग के पास, सबके पास एक को पायलट है, एज अ को पायलट, जो कि हम लोग हमेशा हमारा साथ है, हम लोग कुछ भी पूछ सकते हैं उसके साथ। So not always is accurate, but if you do brainstorming, then we can able to get our goal. So this is the best way to first understand yourself. What is your interest? What is your key expertise? Like what you are doing, lobbying, what you are doing and what you are lobbying. So that is the most important thing. That in career, it's most important thing that when you are like in professional life, like whatever thing you do with interest, and it will go long way. Otherwise, within 2 to 3 years, we quit your job, and if you're interested, then it will make your everyday life happy, because you can't expend more than 10 to 12 hours the work you are not interested. जिस काम में आप इंटरेस्ट नहीं हो, आप डेली 10 घंटा 12 घंटा नहीं दे सकते। तो इसीलिए पहले अपने आप को जानना चाहिए, अपने आप को मालूम करना चाहिए, उसके हिसाब से अपना करियर पाथ चूज करना चाहिए। Always there is guidance from the seniors who are doing that. If you are interested in AI, then maybe we can. There are lots of now. If you see in YouTube, lots of content are there, and even if you see in LinkedIn, you can connect with the professional who is working in that. If you ask question, they can answer your question. We can able to know about more about that particular like subject or like career we want to. Okay, let's me now go to next slide. Yeah, in traditional career, what we have like engineering. Like in engineering, first if you choose like in like career as a science means we can do our engineering. In engineering also there are lots of
like change going on. Now, previously we have a civil engineer, mechanical engineer, software engineer, but nowadays if you see there's a mechatronics, robotics, and there will be artificial intelligence, there is data science, there will be natural language processing, computer vision. There are lots of like new domain came. So people don't know about the new emerging. There is cyber security is there, data analyst there. So there are lots of new domain came, but people know only which traditional career only. Like if engineering means people know about computer science, civil engineer, mechanical engineer, software like that. In doctor we do MBBS, BDS, and in we can also do engineering architect. We can able to build the house design and the 3D modeling, and also the new like course we have do the data scientist in graduation. Now how AI impacting those things? If you talk about doctor now, in if you see lots of lab report like x-rays, MRIs, even more than like 100 like around, if you see doctor even can't able to clearly identify the all the analysis of the particular x-ray, MRIs, but AI engine can able to do that. This is the big advantage for the doctor, so they can focus on their main thing like doing the understanding about the patient history, but they can't able to like spend their time to analyze the report which are generated by the computer. So feeding the AI, they can use fraction of second can understand about the report details. So even in like in engineering also, if you know about the predictive model, is predictive like ऐसा मॉडल है कि जो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर बेंगलोर में अगर मुझे किसी जगह हाउस लेना है तो उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग का क्या होगा, हिस्ट्री डाटा रहेगा। हिस्ट्री डाटा से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रेडिक्टिव इंजीनियरिंग। तो ऑलरेडी आई टॉक अबाउट डॉक्टर यूजिंग द मेडिकल लाइक स्कैन, एक्सरे विथ सुपर ह्यूमन एक्यूरेसी, मतलब जो ह्यूमन उस चीज को पता था उससे सुपर पावर से कर सकते हैं हम लोग इजिली से विद द एआई। नाउ इन आर्किटेक्ट लाइक previously if they spend like 15 days 20 days to create one like design building design, but now using the AI like 12 to 24 like design they can do in a one day with the 3D modeling also using the AI. So like what AI did, AI not just it replace the traditional like course, but it give the extra mileage to the traditional course. So we can we will not expend that much time, timing is reduced and efficiency is increased using the AI. Let's move to the like traditional course like chartered accountant, marketing if you choose your career path as a commerce and arts, then in commerce like we have the CA chartered accountant, then we have marketing manager, journalist and graphic designer. Now how this thing impacted by the AI? If you talk about the CA, now if one CA can't able to handle the whole company data to do the auditing thing, but using the AI they can able to audit the thousands of transactions and they can easily find the detect and fraudulent activities with the help of the AI. So AI that much capable, because even if we are human, we can't able to read all the transaction. Even if we do 1 hour, in next hour we feel lazy, हम लोग क्या करेंगे, लेजी हो जाएंगे कि our mind is like that. We can't do like as a machine, like throughout the day we can't become the active, but she use AI to find the like fraud in the activity like now in marketing. If you talk about the marketing in traditional marketing and what AI can increase that, like now we can able to understand about the users. If you see about in Netflix and YouTube and Facebook,
you see the whatever you are interested, if you search something on a Google, like you talk about any product on, कुछ भी हम लोग सर्च करेंगे गूगल पे रिलेटेड टू एनी प्रोडक्ट यू वांट टू बाय, तो हम लोग के क्या आएगा, वो एडवर्टाइजमेंट हम लोग के पास फेसबुक में भी दिखाई देगा, यूट्यूब में भी दिखाई देगा। क्यों? ड्यू टू एआई। तो एआई क्या करता है, हम लोग का हिस्ट्री डाटा लेता है, उससे हम एनालाइज करके वही एडवर्टाइजमेंट देता है जो हम लोग इंटरेस्ट है, हम लोग कुछ खरीदने वाले हैं, तो दैट विल इम्पैक्ट द मार्केटिंग ऑल्सो। इन journalist also, like AI is very important. If you want to know about the history, then we can't read all everything, like we can't able to read the whole book, but with the AI we can able to summarize the book, or we can transcribe the interviews happen like 100 years before. We can able to read that book with summarization, so it will give you the like in less amount of time we have good knowledge about the those incident what happened in past. Now in graphic designer, just in first page I show you that just 2 hours before I created one image using the AI tools. We can able to create the very like good logos and image with the little knowledge of our English. We can able to create. If you see here, yeah, there is one model we call DALL-E E3. This is the image generation memo, like text to image. If you give text, it will generate the image based upon our text. How you give the prompt, based upon the prompt, it will be generate the image. So it is very easy. Like if you know English, what you want in your mind, what you want to do, just describe it and it will generate the image for the content. Yeah, in the career in AI, there are lots of field. I already mentioned that there will be first starting from the machine learning. What machine learning will be do? It like a predictive model. Predictive model is like that. हम लोग को क्या है कि हिस्ट्री डाटा देना है। हिस्ट्री मतलब जो ऑलरेडी हैपन है, लेवल है, तो उस डाटा, जैसे हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग जीमेल यूज करते हैं। जीमेल यूज में क्या होता है, हम लोग को एक स्पैम नॉन स्पैम, देखो कोई भी मेल ये स्पैम है कि नहीं है, तो उसके पता लगाने के लिए एक प्रेडिक्टिव मॉडल यूज करता है। तो प्रेडिक्टिव मॉडल क्या करता है, पहले लेवल देता है कि दिस टाइप्स ऑफ वर्ड आने के बाद हम लोग क्या लेवल देंगे स्पैम के लिए। अगर दिस टाइप्स ऑफ वर्ड नहीं आया तो हम लोग स्पैम नहीं देंगे। तो वैसे ट्रेनिंग होता है मशीन लर्निंग में। उसके बाद आता है डाटा साइंस। डाटा साइंस मतलब उस डाटा को इंसाइट करना, इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना कि क्या ट्रेंड है। जैसे सीजनल ट्रेंड है, सीजनल ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग बिजनेस को यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद मॉडल बिल्डिंग है। मॉडल बिल्डिंग है मतलब इनसाइट हम लोग जैसे कोई भी मॉडल कैसे ट्रेन करें कि जैसे हम लोग जो अपना हाउस प्रेडिक्टिव है, स्पैम डिटेक्शन है, जेनेटिव एआई है, तो वो सब पहले क्या हुआ है, ट्रेन किया हुआ है। जैसे अगर जेनेटिव एआई देखे तो पहले बहुत सारा विकिपीडिया डाटा और बहुत सारा बुक जनरल ये सब से ट्रेन किया हुआ मॉडल है। तो इसलिए हम लोग क्या होता है कि कोई भी आंसर पूछने से वो आंसर देता है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो यूज करके वो लोग ट्रेन किया है। और अगर हम लोग देखें तो मॉडल हम लोग ह्यूज भी बना सकते हैं और स्मॉल भी। अगर हम लोग को किसी पार्टिकुलर कंपनी के लिए बनाना है, हम लोग सिर्फ कंपनी का डाटा यूज करना है, तो इसके लिए स्पेसिफिक कंपनी के लिए ही डाटा यूज करेंगे। अगर हम लोग को जेनेरिक मॉडल बनाना है तो इसके लिए हम लोग का क्या होगा, पूरा विकिपीडिया, बुक्स, जो भी जनरल, जो भी न्यूज़पेपर, सब डाटा को हम लोग ट्रेन करना है। तो उसके लिए क्या ह्यूज पावर चाहिए, ह्यूज कंप्यूटेशन चाहिए, ह्यूज स्टोरेज चाहिए। नाउ एक और है क्या, रेस्पॉन्सिबल एआई। रेस्पॉन्सिबल एआई का काम क्या होता है कि द मिस यूज ऑफ एआई। बहुत सारा फील्ड में क्या होता है, मिस यूज होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हर
देश में कानून लेके आता है, रिस्पॉन्सिबल एआई करके। सो एआई, अगर हम लोग पूछेंगे कि एआई के साथ बम कैसा बना जाए, एटॉमिक बम कैसा बनाया जाए, तो वो आंसर नहीं देंगे, क्योंकि देर इज सम रूल्स टू कंट्रोल इट। So there is responsible AI rules will be implemented in all country, so that there will be control of misuse of AI. Yeah, what are the skill needed for the AI? क्या क्या skill चाहिए? Uh, if you go with traditional way, then we need first of all, like कोई भी मास्टर, कोई भी पहले कंप्यूटर साइंस या जैसे पहले क्या होता था, 10 क्लास में हम लोग को सिर्फ दो ही स्ट्रीम होता था, साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। जैसे साइंस वाले क्या करते थे, इंजीनियरिंग करते थे। साइंस में दो किस्म होता है, एक इंजीनियरिंग या डॉक्टरी, पीसीएम है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो ये दो फील्ड रहते हैं। लेकिन अभी 10 के बाद ही क्या होता है, कंप्यूटर साइंस ऐड किया गया है। तो अभी हम लोग आफ्टर 10 ऑल्सो वी कैन एबल टू स्टडी द कंप्यूटर साइंस। +2 में कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस से लिया हुआ है या कोई भी सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स है, तो वो बैचलर डिग्री कर सकते हैं। तो मेनली डाटा साइंस और मशीन लर्निंग, डाटा इंजीनियर, जेनेटिव एआई, मेन क्या है कि मैथमेटिक्स आना चाहिए, मैथमेटिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बेसिक हम लोग मैथ्स लाइक 95% वी आर यूजिंग द पाइथन प्रोग्रामिंग, जो एक लाइक टूल्स है जो हम लोग डाटा साइंस और एक यूज करने के लिए। तो कोडिंग के लिए हम लोग पाइथन यूज करते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन अगर कंप्यूटर साइंस या आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी, और स्टैटिस्टिक्स या बीसीए विद कंप्यूटर साइंस और एमसीए, कोई भी डिग्री हो, आप आराम से एक जॉब कर सकते हैं डाटा साइंस का। इसमें भी बहुत सारा डाटा साइंस में भी पहले लाइक इसमें अपना क्या होता है कि इस फील्ड का स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे मास्टर करने का, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है कि जो भी काम रिलेटेड टू टेक्स्ट, कोई भी काम टेक्स्ट के साथ होता है, लेकिन चैटबॉट, जीपीटी, जेमिनी, ये सब क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। अगर कोई भी चीज इमेज से होता है, जैसे मैं एग्जांपल दिया डेले, लाइक डेले मॉडल, दैट इज कंप्यूटर विजन में कोई भी मॉडल रिलेटेड टू इमेज, वो होता है कंप्यूटर विजन। और रोबोटिक्स है, स्पेशलाइजेशन इन रोबोटिक्स कर सकते हैं। तो उसमें भी यानी बहुत सारा सेक्शंस है। तो एक है रिकमेंडेशन सिस्टम। जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे अगर हम लोग माने तो नेटफ्लिक्स में अगर कोई हम लोग वीडियो देखते हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोग का वीडियो सजेशन आता है, तो हो गया रिकमेंडेशन सिस्टम। वो भी एक टाइप्स ऑफ एआई इंजीनियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट लिखने का भी एक ये होना चाहिए बेसिक। जैसे कि हम लोग क्या था, समराइज द मेन कॉजेस ऑफ वर्ड इन 3 लाइक 5 पॉइंट। तो ये क्या करेगा, समराइज करेगा, 5 पॉइंट में देगा। तो 5 पॉइंट में दे दिया। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं प्रॉम्प्ट को। और फिर दूसरा, नाउ एक्सप्लेनेटरी प्रॉम्प्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो साइंस स्टूडेंट है उन लोग को मालूम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ देख सकते हैं
हर कॉन्सेप्ट को कैसे ब्रेक करके हम लोग को अंडरस्टैंडिंग कराता है फिजिक्स टर्म में। सो जो भी साइंस स्टूडेंट है उसको अगर डिफिकल्ट होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, विद द रियल टाइम एग्जांपल हाउ वी कैन ब्रेक दैट इनटू द सिंपल टर्म। सो हम लोग प्रॉम्प्ट के साथ हम लोग ट्यून करके हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते थे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजी वे एबल टू अंडरस्टैंड। और तीसरा है एक्ट एज ए एक्सपर्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट को एज अ एक पहले डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन क्या करते हैं, उसको एक रोल दे सकते हैं। रोल मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्ट एज अ यही मास्टर, तो उसी रिलेटेड टू आंसर देगा प्रॉम्प्ट। जैसे हम लोग का टीचर होता है, जैसे साइंस टीचर सिर्फ साइंस पढ़ाएंगे और मैथ टीचर मैथ पढ़ाएंगे, ऐसे अगर हम लोग प्रॉम्प्ट को पहले दे दिए कि आप फिजिक्स टीचर हो, तो उसी हिसाब से वो अपना एनालाइज करेगा, उसी हिसाब से आंसर है। तो ये क्या है स्पेशली, तो ChatGPT बहुत ह्यूज डाटा में ट्रेंड है। तो अगर हम लोग जनरल अगर ऐसे पूछ लेंगे तो वो क्या देगा, जनरल आंसर देंगे। तो अगर हम लोग उसको एज अ रोल दे देंगे, एज अ इंस्ट्रक्शन देंगे, तो हम लोग का अपना जो हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक ये होता, तब तक हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं, तब तक कंप्लीट होना। Like or everyone now is thinking about the AI will replace the human, but it can't. AI is like powerful calculator, you are the mathematician, you are irreplaceable human skill। मतलब AI human skill को कभी replace नहीं कर सकता है, but we think like that जो भी टास्क लाइक रिपीटिव टास्क है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और जो भी टास्क में क्रिएटिविटी चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए, उसको एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है, एम्पैथी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इथिकल जजमेंट है, लीडरशिप कोलैबोरेशन, ये सब एआई रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसमें एआई सपोर्ट कर सकता है लेकिन इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो जो भी वर्क में क्रिएटिविटी चाहिए, कोलैबोरेशन होना, क्रिटिकल थिंकिंग, वो सब एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। क्योंकि एआई क्या होता है कि जो हिस्टोरिकल डाटा से ट्रेन हुआ है उसी डाटा को वो उसके रेस्पेक्टिव में आंसर दे सकते हैं। लेकिन जो फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर को जो हम लोग एनालाइज करते हैं और जिसमें हम लोग न्यू कोई भी न्यू चीज हम लोग डेवलप करते हैं तो उसको मालूम नहीं होता। क्योंकि ये क्या होता है, जो भी हम लोग डाटा फिट किए उसके इनसाइड से वो आंसर देते हैं। नाउ लेट्स फॉरसी दैट आंसर इज जनरेटेड और नॉट। देखते हुए कितना टाइम लिया। हाँ, अब इसने क्या क्रिएट किया, एज अ IIT-JEE जो लेवल का क्वेश्चन है, 3 टफेस्ट क्वेश्चन वो दिया सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं IIT-JEE के लिए अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो आराम से मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करूंगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो ये को पूछेंगे स्टेप बाय स्टेप हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लाइक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। पहले क्या होता था, अगर एक डाउट हो गया तो हम लोग को नेक्स्ट डे रुकना पड़ता था, टीचर को पूछना। अगर टीचर उस पार्टिकुलर चैप्टर को अगर फिनिश कर दिए तो फिर रिलेटेड टू वी कैन एबल टू आस्क दैट क्वेश्चन। तो अभी क्या है कि बहुत इजी हो गया, कोई भी डाउट हो हम लोग इजिली से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द आवर कोपायलट। Let's play one like simple game, like if like I will give you one profile like Aisha, like she loves biology and arts, good at observing details। तो उसका इंटरेस्ट है कि बायोलॉजी में और आर्ट्स में,
एंड गुड एट ऑब्जर्विंग डिटेल्स। तो उसको ऐसा को कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए? एनीवन वॉलंटियर? एनी आंसर्स? हाँ, हेलो, कोई सा गेस, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, जस्ट गेस करना है। मतलब लव्स बायोलॉजी एंड आर्ट्स, ये तो ऐसा को क्या चाहिए? बायोलॉजी पसंद है, लव बायोलॉजी एंड आर्ट्स, देन गुड एट ऑब्जर्विंग द डिटेल। मेडिकल फील्ड चूज कर सकता है, मेडिकल या आर्ट्स हो। हाँ हाँ, मेडिकल चूज करते हैं, आर्ट्स हो गया। एंड प्रोफाइल 2, रोशन, एक्सपर्ट गेमर, स्ट्रेटेजी गेम्स, ग्रेट एट डिबेटिंग एंड लॉजिक। तो रोशन का कौन सा कैरियर चूज कर सकते हैं रोशन? He can be a project manager kind of thing. He's good at logic and debating, and that means he's good at with communication. So he should go with that. Probably. Good, yeah, maybe. And maybe become like expert in gamer, become the game developer. They can develop their one game. Yes. And ऐसा loves writing and social media, fascinated by why things go viral. तो कौन सा कैरियर चूज? Digital marketing, I think. जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म या फिर यस, करेक्ट। Content creation, digital कंटेंट marketing. क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग। प्रोफाइल लव्स बायोलॉजी एंड गुड एट ऑब्जर्विंग डिटेल्स, कैरियर कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट। तो ये, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद को एनालाइज करके हम लोग कोई भी कैरियर जैसे चूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम लोग को क्या करना, शुरू में भी बताया था, अपना नॉलेज कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, और उस डॉट को कनेक्ट करना है कैरियर से, कि कैसे मेरा जो इसमें इंटरेस्ट हो उसको कैसे मैं एज अ कैरियर बनाऊं। ब्रेक द मोल्ड, your passion, talent matter, not stereotypes. Algorithm doesn't care about your gender or background, it only care about logic and good data. Like in AI, what actually always it matter about the data. Always like garbage in garbage out one is concept. Like अगर तुम garbage in दोगे वो garbage out ही होगा। तो इसलिए अगर अच्छा डाटा दोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। The AI work like all the AI model will work like that. If you get the good data, you will get the good answer. It work like that. Now time for question. Like any volunteer, if you have any question, anything related to like AI or what we'll do after 10, or any students want to know more about the career, what we can choose after 10, 12, or like we can do diploma, or maybe we want to go for further studies, anything, any question. Like no question is a silly question, सेशन एक्चुअली इनका जो सेशन था वो ऑलरेडी, मतलब उनका जो पार्ट था इनका वो अपना हो गया इनका। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या है, आंसर क्वेश्चन आंसर का सेशन है। किसी पास कोई क्वेश्चन हो तो आप आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे, चाहे डेटा साइंस वगैरह हो या फिर एआई से, कोई आप अपने करियर के से रिलेटेड कोई हो तो आप। हाय, दिस इज अबू सलमान। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ एमएनसी में, लाइक एज ए कंटेंट मॉडरेटर जॉब कर रहा हूँ सिंस 2020। नाउ आई वांट टू स्विच इनटू टेक फील्ड, लाइक मैं प्लान कर रहा हूँ डेटा साइंस के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि डेटा साइंस का कोई इंस्टीट्यूट, या हाउ कैन आई स्टार्ट learning data science? What is the more best way to learn for me so that I can learn very quickly and easily, as I have no like tech background. I am completely from non-technical background. So अभी देखेंगे, अगर YouTube में ही सर्च करेंगे, बहुत सारा जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से एआई में आया है, बहुत लाइक more than
thousands of people if you can see in YouTube. So बहुत easy है. If you are already expertise in some field, तो एआई में आने के बाद क्या होता है, आपका जो डोमेन नॉलेज है ऑलरेडी, जो आपका प्रोफेशनल कैरियर जो 5 इयर्स का है, तो उस डोमेन स्किल को आप एआई से इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या होगा, कैरियर ग्रोथ ज्यादा होगा. क्योंकि कोई भी एआई इंजीनियर, उसको क्या चाहिए, एक बैकअप चाहिए, सपोर्ट, जिसको डोमेन नॉलेज मालूम होना चाहिए. अगर मैं अपना एआई कोई भी प्रोडक्ट में बना रहा हूँ हेल्थ केयर के बारे में, तो मुझे हेल्थ केयर एक बंदा चाहिए, स्पेशलिस्ट, उससे मैं इनपुट ले सकूं, देन ओनली आई कैन एबल टू डेवलप अ मॉडल. ऐसे ही अगर कोई बैंकिंग का फील्ड हो या एचआर का, पेरोल का टीम हो, कोई भी चीज हो, हम लोग को डोमेन एक्सपर्टाइज चाहिए ही कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो आपके पास ऑलरेडी एक 5 साल का एक्सपीरियंस है डोमेन का, तो उसमें आप स्टार्टिंग कर सकते हैं. लाइक पाइथन से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं. पाइथन फर्स्ट आपको एक प्रोग्रामिंग, कोई भी डाटा साइंस रिलेटेड वर्क, हम लोग को प्रोग्रामिंग लाइक बेसिक लेवल. लेकिन आजकल अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा टूल आ गया है जो कि सिर्फ हम लोग को कमांड देना है. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस में, नेचुरल लैंग्वेज में हम लोग को क्या है, कमांड देना है कि हम लोग को क्या बिल्ड करना है. तो ऑटोमेटिक एआई क्या करेगा, वो खुद से आपका पूरा कोडिंग सब चीज खुद से लिख दे. बस आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या करना है. तो बेसिक नॉलेज चाहिए. विदाउट बेसिक नॉलेज हम लोग उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा फंक्शनैलिटीज होता है. तो सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स चाहिए, और आपको है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. लाइक पाइथन से आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे सिंपल प्रोग्राम को कैसे हम लोग हैंडल करें, सॉल्व करें. उसके बाद अगर आपको अभी तो जेनेटिव एआई हो गया, अगर आपका रिलेटेड टू मशीन लर्निंग है, फिर उसके में मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम मालूम होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ एल्गोरिदम, जैसे प्रेडिक्टिव मॉडल कैसे यूज करता है, लॉजिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट कैसे काम करता है, ये सब एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग का. जैसे आपको ऑलरेडी हम लोग स्कूल में पढ़े थे, y=mx+c, वो यूज होता है लीनियर रिग्रेशन में, लीनियर रिग्रेशन प्रेडिक्ट करने के लिए. तो वैसे बेसिक हम लोग को मालूम होना चाहिए, उतना डेप्थ में नहीं. लेकिन अभी क्या है कि इफ यू नो बेसिक्स वी कैन एबल टू बिल्ड एनीथिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो अभी इतना टूल आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट. जस्ट एक फ्रेम बना दीजिए, मुझे ये करना है, ये फ्रंट एंड चाहिए, ये बैक एंड चाहिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना. आपको हर एक स्टेप का कोड लिख के दे देंगे, बस आपको डिबग करना है उसे. तो बेसिकली स्टार्ट विद पाइथन में बोलते हैं, पाइथन और स्टैटिस्टिक्स से तो स्टार्ट ये कीजिए. उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह या कोई ऐसा कोर्स जो कर सकता है, मतलब इजीली पैसा? इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि आपको 6 महीना और टाइम वेस्ट होगा, और वो लोग उतना क्या करेंगे, 1-2 घंटा का सेशन देंगे, उससे कुछ सीखना. उससे बाद मैं आपको एक यूट्यूब लाइक क्लिस नायक का है, उसका मैं आपको यूआरएल दे दूंगा, लिंक. तो उसके थ्रू वो आराम, एकदम सिंपल, जो भी नॉन टेक्निकल बंदा है वो आराम से समझ जाएगा उसका कंसेप्ट. जैसे अगर कहीं मतलब कहीं जॉब करना हो, जैसे सलमान भाई का क्वेश्चन था कि जैसे हम नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, तो अगर हमको स्विच करना है आईटी बैकग्राउंड में, तो अगर मेरे पास कोई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मैंने कहाँ पे कोर्सेज किया? हाँ, अगर आजकल क्या होता है कि सर्टिफिकेट आप यूडेमी से भी कर सकते हैं. यूडेमी में आपको लगभग लेकिन कोर्स में क्या होता है, वो लोग लाइक 6 महीना का लगभग 2-3 लाख रुपया पैसा भी ले लेता है, लेकिन कोई वैल्यू एड नहीं होता है. तो आप यूडेमी से कर सकते हैं, यूडेमी का सर्टिफिकेट कर सकते हैं. अभी क्या चाहिए कि आप कोई भी फील्ड से आ सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ स्किल नॉलेज होना चाहिए. इसके लिए क्या करेंगे, आप जो भी यूट्यूब से सीखेंगे उसको मिनी प्रोजेक्ट, छोटा प्रोजेक्ट करके अपना रेज्यूमे में आप लिखेंगे. तो आजकल क्या होता है, बहुत सारा आप देखेंगे बड़े कंपनी वो क्या करते हैं, इस सर्टिफिकेट और स्कूल डिग्री भी नहीं चाहिए उसको. सो क्या है, पार्टिकुलर स्किल चाहिए. अगर आप पार्टिकुलर स्किल में आप एक्सपर्ट है तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगा. जो आजकल रेज्यूमे कैसे फिल्टर होते हैं, स्कैनिंग होते हैं,
कीवर्ड जो जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है वो आपका रिज्यूमे में कीवर्ड होता है, तो आपका मैच करेगा, आराम से आपको उसमें इंटरव्यू कॉल आएगा। तो आपको स्किल ऐड करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यूडेमी कर सकते हैं, कोर्सेरा है, कोर्सेरा में फ्री में कोर्स कर सकते हैं, कोर्सेरा है, यूडेमी है। अगर आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना ही है तो उसके लिए भी मैं दे दूंगा, कृष्ण नायक ही अपना वो चलाते हैं इंस्टीट्यूट, तो उसमें आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भैया, बहुत ही हेल्पफुल थी आपकी इंफॉर्मेशन, और बहुत अच्छा होगा अगर आप लिंक शेयर कर दें हम लोगों के साथ, तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जैसा ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा जितना भी रिलेटेड लिंक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, किसी पास कोई क्वेश्चन जो आपके बिहाफ से या आप दूसरों के बिहाफ से भी कर सकते हैं। Oh, sorry. Thank you. First of all, I would like to thank Mohammad Yesha Bhai, and the information was very, helpful for me. मेरा जो मकसद था ज्वाइन करने का इस मीटिंग को, वो ये था कि मैं समझूं कि डेटा साइंस जॉब क्या होता है, और सारी चीजें आपने कैटेगरिकली क्लियर करा है और मैं अच्छे से समझ पाया उसको, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसका। और जैसे कि हम जिस इलाके से आते स्पेसिफिकली, वहां पर थोड़ा सा एजुकेशन, जैसा कहा आपने, जो पुराने जमाने से चलता रहा वो अभी भी चल रहा है। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो 12वीं पास कर रहे हैं अभी, वो बच्चे को कैसे हम गाइड करेंगे डेटा साइंस की तरफ करें, क्योंकि डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एआई जो है, ये सब तो फ्यूचर है, लेकिन है कि वो हम कैसे उसको बता सकते हैं कि कैसे करेंगे, हमारे छोटे भाई बहन को कैसे बता सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए तो जैसे अभी अतर भाई ने जो वेबिनार ये जवाब कोई भी दे सकते हैं, सॉरी, ये जवाब कोई भी दे सकते हैं, ठीक है? हाँ ठीक, हाँ ट्राई टू, ये सब हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, नॉलेज शेयरिंग। और उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या हम लोग क्या करते हैं, उसको अभी तो बहुत सारा कंटेंट आ गया है, आप गूगल कर सकते हैं, है ना, ये कर, तो उसको एग्जांपल से दिखाना पड़ेगा कि कितना इम्पैक्ट कर रहा है लाइफ में, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे सब आते हैं उन लोग को उतना मालूम नहीं होता, लेकिन जो अगर गेमिंग खेलते हैं तो गेम में कितना इम्पैक्ट करता है एआई, तो उसको जिस चीज में इंटरेस्ट है अगर उसी चीज में दिखाएंगे कि अगर एआई से कितना चेंज हो सकता है, तो उसको बताएंगे कि अगर आपको कोई डाउट हो, होमवर्क कर रहे हैं, कोई आप है ना प्रॉब्लम में आ गए, लाइक 10th क्लास में, 12th क्लास में या 8th क्लास में आप प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको बता देगा कि ऐसा इस प्रॉब्लम को ऐसे स्टेप बाय सॉल्व करना है, तो उसको इंटरेस्ट आएगा कि एक्चुअली वो काम कैसे कर रहा है, इनसाइट जो हम लोग क्वेरी देते हैं वो क्वेरी इनसाइट कैसे काम करता है। तो इसके लिए भी जैसे क्या होता है कि एक एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट है। एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी वर्ड हो उसका एम्बेडिंग एक दूसरे से मिलता है। अगर देखिएगा यहाँ एजुकेशन, एम्प्लॉय, प्रोग्राम, स्कूल, ये सब एक आपस में है। डिग्री, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, क्वालिफाइड, तो जो भी हम लोग क्वेरी लिखते हैं, जो भी क्वेरी, तो उस क्वेरी को एट द बैकएंड क्या होता है कि बैकएंड वो नंबर में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एम्बेडिंग बोलते हैं हम लोग। इन डाटा साइंस में अगर आप इंटरेस्ट रहेंगे तो उसमें यूज होगा वेक्टर डीबी। वेक्टर डीबी क्या होता है कि जो कोई भी वर्ड हो जो सिमिलर मीनिंग देता है वो एक इकट्ठा रहता है, एक ग्रुपिंग में रहता है। समझ गया मैं। हाँ, तो जो भी हम लोग क्वेरी करते हैं तो वो क्या करता है उस एम्बेडिंग के आसपास में ही जाता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हम लोग एक सिंपल फॉर्मूला पढ़े थे, cos थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड यूनिट ऑफ टू वेक्टर। तो हम लोग ये cos थीटा पढ़े थे फॉर्मूला, तो वही cos थीटा यहाँ यूज होता है सिमिलरिटी मैचिंग के लिए। जो अपना क्वेरी जो हम लोग देते हैं वो क्वेरी से और जो वेक्टर डीबी में मेरा जो डाटा रहता है जैसे ये सब, तो उस दोनों डाटा को मैच करने के लिए हम लोग सिंपल फॉर्मूला कोसाइन थीटा यूज करते हैं। तो इतना सिंपल मैथमेटिक्स है
जो कि 6 क्लास के बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन रियल यूज यहाँ आता है जेनेटिव एआई में यूज हो रहा है, जो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे कोई भी दो डॉक्यूमेंट है उसको कितना परसेंट सिमिलरिटी है दो डॉक्यूमेंट, तो उसके हम लोग कॉस थीटा के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। एक Okay. डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट किए वेक्टर में, दूसरा को डॉक्यूमेंट कन्वर्ट किया, उसको डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो जितना भी उसका एंगल बनेगा तो उतना उसका सिमिलरिटी स्कोर हुआ। अच्छा, हाँ वेरी इंटरेस्टिंग। बचपन में cos थीटा क्यों पढ़ते थे पता भी नहीं था। हाँ, पता भी नहीं था, तो अभी सही बात है। तो हम लोग खाली फॉर्मूला याद रख लेते थे, बस वही सॉल्व कर देते थे। अच्छा, एक अनाउंसमेंट मैं कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने लोग होते हैं मुझे लगता है कि डेटा साइंस से इंटरेस्टेड है। HD हब्स नाम करके टोली चौकी में हैदराबाद में और एक और डेटा साइंस इंस्टीट्यूट है जो कि फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं डेटा साइंस वगैरह। तो वो हम लोगों ने चलवाया है अतर भाई। तो माशाल्लाह, कोई बच्चे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं फ्री में। बहुत बढ़िया। एक बात, दूसरी बात है मैं खुद पढ़ना चाह रहा हूँ पर मैं वहां जा नहीं पा रहा हूँ। ये भी एक चैलेंज है। तो यशा भाई, मैं एक गुजारिश आपसे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ पता नहीं, फिर भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं डेटा साइंस सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चीजें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपने तरीका बताया मैं उसको फॉलो करता हूँ, जैसे कि अपने आप को जानने की कोशिश करना थ्रू प्रॉम्प्टिंग चैट जीपीटी में, वो मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के बाद मैं थोड़ा सीखने की कोशिश करा। लेकिन एक कमी खलती है मेंटरशिप की। तो वो मेंटर में कहाँ ढूंढूं? पता है कितनी हेजिटेशन होती है किसी के पास भी कुछ पूछने में, किसी से कुछ जानने में। लेकिन आपको देख के मुझे बहुत मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। तो क्या मैं आपसे मेंटरशिप की उम्मीद रख सकता हूँ या कोई और दूसरे साथी आपसे मेंटरशिप की उम्मीद रख सकते हैं? जरूर, इस सेशन का मकसद ही वही है हाँ, अच्छा। कि नॉलेज शेयरिंग, जो हमको पता है आपको शेयरिंग है, आपको पता है हम लोग, ये सेशन का मतलब ही वही है। अननोन पर्सन से हम नॉन है लेकिन अननोन बन के है। सही बात है। क्योंकि यकीन मानिए वो ईच वन टीच वन हम लोग चलाए थे कॉन्सेप्ट, एक बंदा एक को पढ़ा दो। हाँ। तो ईच वन टीच वन करके भी हमने कम से कम 3-4 बच्चे को पढ़ा के जॉब लगा दिए, फ्रेंच पढ़ा के, समझे ना। तो हम डेटा साइंस से पढ़ेंगे तो नियत, मैंने पहले अपने बच्चों के बारे में पूछा कि उनको क्या बताएंगे। मैं सीखना चाहता हूँ और क्योंकि ये जरूरी है इसलिए सीखना चाहता हूँ, नहीं और मेरे पास कुछ नहीं कहने के लिए। अभी मैं हाँ हाँ, थैंक यू आपका फीडबैक। मतलब ये कि ऐसा अभी हो रहा है ना हर एक फील्ड में, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के फील्ड में ही, जो हम लोग अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हेल्थ केयर में और पेरोल में, उसके बाद हर मतलब सब फील्ड में एआई के बिना अभी मतलब इमर्जिंग, मैं बोलता 5 साल के बाद, मतलब जैसे पहले कंप्यूटर आया था ना, तो वैसे ही अभी क्या आ जाएगा, एआई का जमाना आएगा। तो हर फील्ड में एआई जरूरी है। सही बात है। आपको जैसे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए, वैसे बेसिक नॉलेज ऑफ एआई सबको जाना। अभी हम लोग का डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में अभी कंपलसरी कर दिया है कि बेसिक ट्रेनिंग जेनेटिव एआई का सबको होना जरूरी है। एआई का लेवल 1 ट्रेनिंग सबको, जो भी फील्ड में हो उसका बेसिक लेवल ट्रेनिंग होना जरूरी है। तो उसका मतलब क्या हुआ गया कि फ्यूचर सब लोग देख रहे हैं एआई की तरफ।